हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना डिजीज़ के कारण स्कूल्स बंद हैं और आप अपनी जो एनटीएससी की प्रिपरेशन है वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। सो इसको पूरा करने के लिए जीएवी एकेडमी आपको प्रोवाइड करा रही है स्पेसिफिक लेक्चर फॉर एनटीएससी। इसलिए आप जुड़िए हमारे साथ और अपनी प्रिपरेशन को पूरा कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। वेलकम टू जीएवी एकेडमी। माई सेल्फ देवेंद्र अलावत, आई विल टीच यू बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the syllabus of biology which comes in NTSC exam. What are the various topic in biology which comes in NTSC exam? These are cellular organization, second diversity in living organism, life cycle, life process, reproduction, in living being, नेक्स्ट है अपने पास हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, next is some common disease, next है food production and its management। नेक्स्ट सोयल, वाटर, एयर, and plant and animal nutrition. These are the some specific topic from biology which comes in NTSC exam. And last topic, that is the our environment. Our environment. These are the specific topics which comes in NTSC exam. Let's start with first topic, that is cellular organization. What is this cellular organization? बेटा आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। देन कॉम्प्लेक्सिटी इज इंक्रीज। सेल्स कंबाइन टुगेदर मेक टिश्यू, टिश्यू कंबाइन टुगेदर मेक ऑर्गन, ऑर्गन्स मेक्स ऑर्गन सिस्टम, एंड देन organisms are formed. In this cellular organization, we will study
about the cell, the basic unit of life. Then we will study plant tissue and animal tissue. एनिमल टिश्यू, ये सारे के सारे टॉपिक किसके अंदर आते हैं बेटा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज दिस सेल? सेल होती क्या है? व्हाई वी कॉल द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? सेल आप देखते हो बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, all living organism are made up of cells. Those organism which does not have complete cell, that is not living. वो living नहीं है जिसके पास cells नहीं है। तो so we call the cell is the basic unit of life, because all the living organism are made up of this. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिल करके बने हैं। तो पीछे जो क्वेश्चन आया वो यहीं से बना, व्हाट इज द फर्स्ट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ये क्वेश्चन एनटीएससी 2012 में आया हुआ है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है बेटा। फर्स्ट टिश्यू, सेकंड ऑर्गन, थर्ड सेल, फोर्थ ऑर्गन सिस्टम। वैसे मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको सोल्व कराया। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिल करके बने हुए हैं। दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? व्हाट इज द फर्स्ट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, आंसर होगा सेल। इज दैट क्लियर कि सेल इज द राइट आंसर। देन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, organisms or cells are categorized into 2 categories. On the basis of number of cells, organism or cells are categorized into 2 categories. One is the unicellular organism, another is the multicellular organism. In your lower classes you have also studied what are the unicellular and what are the multicellular. Let's come the unicellular organism, those organisms which are made up of single cell only. Those organisms which are made up of single cell only, these are called unicellular organism. Example, amoeba, diatom, paramecium, etc. In unicellular organism, all the activity is done by the single cell. What are the activity? Like digestion, like respiration, like excretion, all the activity is done by the single cell. So the main function of the cell in unicellular organism to perform essential function which are necessary for living. जितने भी एसेंशियल फंक्शन है, चाहे डाइजेशन का है, चाहे रेस्पिरेशन का है, चाहे एक्सक्रीशन का है, चाहे सर्कुलेशन का है, वो सारे के सारे एसेंशियल फंक्शन यूनिसेलुलर के अंदर कौन करता है बेटा? सिंगल सेल करती है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं।
Then multicellular organism, those organism which are made up of many cells. Those organism which are made up of many cells, those that are known as multicellular organism. Example कुछ भी दे सकते हो आप, एनिमल, प्लांट्स, एनिमल्स, जो हम अपनी लोकेलिटी में देखते हैं. दीज ऑल आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर. काम का बंटवारा होता है. स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक सेल्स होती हैं. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग हमारे पास स्पेसिफिक सेल हैं. सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास नर्व सेल्स हैं. सो मैंने अभी यही बताया कि जी प्लांट और जो एनिमल्स हैं, जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, काम का बंटवारा होता है. स्पेसिफिक जो सेल्स होती हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं. देन वी कम्स ऑन द component of cell. What are the various component of cell? Component of cells क्या है? There are three major component of cell. One is cowering or the membrane. Another is cytoplasm. Another is nucleus. These are the three main component of cell. मेम्ब्रेन और कवरिंग की बात करते हैं. एज द नेम इंडिकेट कवरिंग, तो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर हैं सेल के. दीज इंक्लूड सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल वॉल होती है बेटा, दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल. सम बैक्टीरिया, फंगी के अंदर जो है सेल वॉल हमें मिलती है. किन किन के अंदर हमें मिलती है बेटा? ये मिलती है हमें प्लांट सेल, दूसरा अपने पास है बैक्टीरिया, फंजाई. इनके अंदर हमें सेल वॉल मिलती है, लेकिन इनकी जो कंपोजिशन है वो अलग अलग होती है. प्लांट सेल की जब हम बात करते हैं तो प्लांट सेल में सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन की. ठीक है बेटा, इन तीनों की ये बनी हुई होती है. बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन. और फंगी के अंदर जो सेल वॉल होगी दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन. सेल वॉल होती है तीनों के अंदर, लेकिन इसकी बेटा कंपोजिशन जो है वो अलग अलग होती है, अलग अलग सब्सटेंस से मिल करके ये बनी हुई होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर मिलेगी, चाहे वो एनिमल सेल है, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल है. वो तीनों सेल्स के अंदर, तीनों मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब के अंदर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है. और ये जनरली किसके बनी हुई होती है बेटा? ये बनी हुई होती है लिपिड्स की, प्रोटीन्स की. इसमें फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर होती हैं.
Then we comes on the cytoplasm. Cytoplasm consists of fluid and cell organelle. साइटोप्लाज्म के पास क्या होता है बेटा? फ्लूइड एंड सेल ऑर्गेनली होती हैं। जो सेल ऑर्गेनली हैं वो 2 टाइप्स की हैं। वो 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं? द सेल ऑर्गेनली विच आर मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन लेस क्या बताया? सेल ऑर्गेनली 2 टाइप की बताई बेटा, एक मेम्ब्रेन बाउंड और एक मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन बाउंड विच कवर बाय द मेम्ब्रेन। These are of also 2 type again, single membrane bound and double membrane bound. वे ऑर्गेनली जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं उनको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड का नाम दिया गया। एग्जाम्पल इसका बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है गोल्गी बॉडी, वैक्यूल एटसेट्रा। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको एक नाम और दिया जाता है, वो दिया जाता है टोनोप्लास्ट। क्या नाम दिया जाता है बेटा? वो दिया जाता है टोनोप्लास्ट। और जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हैं वो हैं माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। Mitochondria and chloroplast are the double membrane bound organelle. Then membraneless membrane organelle कौन सी होती है बेटा? जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। उसका जो एग्जाम्पल है वो है राइबोसोम, दूसरा एग्जाम्पल है सेंट्रियोल। अब देखिए इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती फिर भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल स्ट्रक्चर के अंदर। ऐसा क्यों? क्या करते हैं ये देखिए। राइबोसोम्स जो होते हैं बेटा, दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। इनको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं बेटा। सो दे हेल्प इन दी प्रोटीन सिंथेसिस। किसमें हेल्प करते हैं ये? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं बेटा। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जो प्रोटीन होता है दैट इज नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ। प्रोटीन क्या है? हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। सो उस प्रोटीन की सिंथेसिस कौन कराता है? उस प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम कराता है। इसलिए इसका नाम दिया गया प्रोटीन फैक्ट्री। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है एनटीएससी में। देखिए मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको। वो कौन सा क्वेश्चन था? वो था कि राइबोसोम आर दी सेंटर फॉर, ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, नन ऑफ दीज। ये जो क्वेश्चन था
NTSC 2012 के अंदर आया था बेटा। तो अभी मैंने आपको बताया राइबोसोम किसका सेंटर है, प्रोटीन का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो राइट आंसर इज प्रोटीन। इज दैट क्लियर? Then we comes on the centriole. सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। दिस सेंट्रियोल हेल्प इन दी सेल डिवीजन और स्पिंडल फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। आगे हम इसके अंदर जब सेल डिवीजन आपको कराएंगे तब बताएंगे कि सेंट्रियोल हाउ विल मेक द स्पिंडल फाइबर। तो सेंट्रियोल क्या करेगा, हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन। देन फ्लूइड रहता है साइटोप्लाज्म में। फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइड की कंपोजिशन क्या क्या है? तो फ्लूइड कंटेन 80% ऑफ वाटर। इसके पास क्या होता है, 80% क्या होता है, वाटर होता है। देन जेल लाइक सब्सटेंस, जेल like substance called cytosol, वो इस फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो मेन एरिना है, मेन एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटी। मेन एरिना है हमारा, मेन अखाड़ा है जिसके अंदर सेलुलर एक्टिविटी होती हैं। ये था हमारा साइटोप्लाज्म। देन वी कम्स ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस is controller of cell, or you can say the brain of cell. Why we call the nucleus the brain or the controller of cell? Because all the cellular activity which occur in our body or in our cell is controlled by the nucleus। कि हमारी जो सेल के अंदर कोई भी जो एक्टिविटी हो रही है उसको कौन कंट्रोल करता है बेटा, उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की इस फंक्शन के कारण इसको कंट्रोलर या ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, सेल्स आर कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप। कि एक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, उसको हम बोलते हैं, उसके बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को या सेल्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं वो देखिए। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। As the name indicate, pro means primitive, karyos nucleus, जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस से मतलब क्या कि वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ कवरिंग नहीं होती, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती। उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर नेक्ड पड़ा हुआ होता है। एग्जाम्पल क्या है फिर इसका,
एग्जाम्पल इसका है बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या है बेटा? बैक्टीरिया, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। देन वी कम्स ऑन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मीन्स इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? कवरिंग होगी आउटसाइड, वेरियस स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। उस स्पेसिफिक मेम्ब्रेन के कारण हम बोलते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड है। और उस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के कारण जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसके अंदर प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, दोनों सेल्स आ जाती हैं। प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स आ जाती हैं बेटा। समझ आया कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या अब्सेंट है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है या अब्सेंट है? इस बेस के ऊपर सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो एग्जाम्पल इसका है बैक्टीरिया, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। फिर यूकैरियोट की बात की हमने कि जिसके अंदर बेटा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। प्लांट और एनिमल सेल्स इसका एग्जाम्पल है। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा था हु डिस्कवर्ड द सेल? किसने डिस्कवर किया था बेटा सेल को? इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो देखिए। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल? ये हमारा क्वेश्चन है। इसके जो आंसर हैं, फर्स्ट आंसर है रॉबर्ट हुक। सेकंड एग्जाम्पल है रुडोल्फ विर्चो। थर्ड एग्जाम्पल है, या थर्ड जो इसका ऑप्शन है वो है अपने पास एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक। और फोर्थ ऑप्शन है अपने पास रॉबर्ट ब्राउन। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? अब आप कहेंगे कि जी ये तो रॉबर्ट हुक ने की थी, और यही हमारा जो है आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते। इसमें पूछा गया है हु डिस्कवर द फर्स्ट लिविंग सेल। इसमें क्या पूछा गया है? किसने डिस्कवर किया लिविंग सेल को? तो जो इसका राइट आंसर है वो है एंटोन वैन लीवेनहुक। अब आप कहोगे कि जी ये कैसे पॉसिबल है, हमने तो रॉबर्ट हुक को पढ़ा है। तो जो रॉबर्ट हुक था उसने सेल की डिस्कवरी की थी, मानते हैं हम रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 के अंदर, लेकिन किसके अंदर की थी? कॉर्क स्लाइस के अंदर। कॉर्क स्लाइस के अंदर। और ये थिन कॉर्क स्लाइस जो था वो डेड सेल्स थी। इसलिए ये जो आंसर है रॉबर्ट हुक का इस क्वेश्चन में रॉन्ग हो जाता है बेटा। तो डेड सेल्स की या फर्स्ट सेल की जो डिस्कवरी हम बात करें वो की थी रॉबर्ट हुक में, लेकिन यहां क्लियर बात लिखी है हु डिस्कवर द फर्स्ट लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय द एंटोनी वैन लीवेनहुक। इज दैट क्लियर? दिस इज द बेसिक अबाउट द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बेसिक था। We will discuss this chapter in detail in our next video. So
आप क्या करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ताकि ये जो टाइम टू टाइम वीडियो हैं ये आपको मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। थैंक यू।